So, welcome to the second part. तो तरसेम सर, टू कंटिन्यू विद यू, जस्ट ये माइक आप यहाँ लगा सकते हैं. जी सर, बोलिए बोलिए. बस मैंने लगा दिया सर. Yes. Okay, sir, I am very much satisfied with your answers. Whatever I have queries or questions, you have very much tried your best to satisfy me, and I am also satisfied. Thank you so much, sir. Okay. तो अभी जो एक मेरा क्वेश्चन है अब आपसे. Okay, sir, most welcome. आपने एक क्वेश्चन मुझे रेज किया था कि बी हाउ पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी, but they are willing to adopt the results. Yes, of course. This is the fact. They want their children should perform and they should do the best, right? Yes, sir. Okay. What you have to do is you have to make your children prepare. If they are not learning the way you wish, so I have just gone through your computer library. There is, good capacity. Yes, sir. Proportional to the strength of the school. Yes, sir. तो why don't you start here in the beginning and उनको एक taste दीजिए आप with that technology, and after that can be implemented in their houses also. Okay, sir. We will try this. If they allow, see, until unless you don't make extra effort, your work will not be recognized. Yes. Okay. If you are giving extra time to the students, that will be always in air. If you are teaching to the point in the class and they are going, you are completing the full formality, that will not be making you different than the others. What makes you to be different than others, that will make you on the top. Means आपके पास एक डेल्टा x होना चाहिए. वो डेल्टा x अगर नहीं है तो it is problem for you. What you are making efforts. For example, Sarah started this school. It's okay there. Yes, sir. No, your question is that how we can grow. How we can grow. So for the growth, what is your opinion? Yes. For the growth of the school, we have to do the teamwork. We have to do the teamwork and adopt new environmental changes जो होते हैं, and we also need the cooperation of school and parents, according to me. What are the challenges? Like sir is going to start now. Okay. Door-to-door Visit. Not daily, just one or two houses per day. So I think within 20 days you will be able to complete. Of course. Am I right? Yes, sir. Yes. Let the people criticize you, hardly matters. No, criticism doesn't matter for me. Yes. Okay. Because Oh, criticism, great. That's the point. Criticism doesn't Matter. बड़ा मशहूर दोहा है, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छुपाए बिन साबन पानी निर्मल करे सुभाए. Am I right? Yes, sir. तो ठीक है, it's good. Yes, sir. criticism itself is a strength. It gives us strength. More passionate we become to chase the challenge. Correct. Yes, ma'am. What do you want to say about it? सर टीम वर्क मस्ट है सर. टीम वर्क करेंगे, जब साथ में जाएंगे, मिल के करेंगे, हम कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को, तो ये हो जाएगा. लेकिन इसमें हमें टाइम लगेगा, मैक्सिमम टाइम लगेगा, बट यस सर, वी विल डू इट. अगर सोचा है तो हो जाएगा. तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द टीम वर्क यू वांट टू आस्क मी? मेरी एक शिकायत है, आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे. सर ने पूछा, एक मैम ने पूछा और किसी ने नहीं पूछा. सर स्टाफ हमारा भी कोऑपरेटिव है और also cooperative, चाहेंगे. यस मैं तो बोल रहा हूँ. सर, यस सर, हो जाएगा सर. मतलब क्वेश्चन की जरूरत नहीं है. नो नहीं, सर, नहीं सर, ज़रूरत है, बट ये है कि कोऑपरेटिव है. हाँ, ग्रो में हर एक स्टाफ मेंबर हेल्पिंग. There is one personality here from Jammu. I have been interacting with him. I request you to come here, sir. Let you stay with us.
Sir, introduce yourself. Hello everyone, my name is Adish Gupta and I am from Jammu. Oh sorry sir. And I am working with UFS Learning from last 1.5 years. So, Sir, actually, what makes me to call you here, sir. I found that you have got a lot of, you have been, listening us very, keenly with Yes, the sir. concentration. So, what was the USP you found in our first session? So the USP which I found is that Sunday classes for weekends, because it will help not only teachers, not only but school as well, because the best advertise. I am from marketing background, so I see marketing way. So the best way is like it's a free word of mouth, which is the free and best advertisement. If you guys will, if your teachers help your students on Sundays, and parents will see that, and they will let other parents know in this local area. And this is something I don't think any school is doing. This is, I told sir, this is something new which even I listen after attending so many workshops. So this will, parents will see you as the helper, not only teachers की काम दे दिया भेज दिया कि मतलब teachers पेन ले रहे हैं, they are taking a pain, and school का एक advertisement होगी जिससे और admission attract होंगी. तो ये मेरे सर को बताया था कि ये point काफ़ी अच्छा लगा जो USP थी अभी तक की, जो मेरे को सबसे अच्छा point लगा था. This is something that. Actually, some years, 2-3 months back, I had the chance to be the part of one workshop in Jammu itself, and Mr. Paul was with us at that time, and Mukesh ji was also with us. So I request Mukesh ji also to join us. Please, sir. Sir. So don't say anything, just join us. So now he is the part of us, and first of all I would like to salute and applaud his confidence. Mr. Gupta, being a resource person, you have invited me here. First of all, thank you very much. No, it's my pleasure. And I'm grateful to Paul sir, Mukesh sir, you, Lokesh sir also. Yes sir. You have attended so many workshops. Right sir. Do you have any questions in your mind to ask a resource person sometimes? Sir, question in the way, like I can say, like I have attended so many workshops that I discussed with you. Like sometimes I told you that you didn't use PPT, and it will be so interactive that teachers don't feel bored. They are feeling like questions will be there. They are interactive sessions. The workshop should be like this only. This is something which I always wanted to know, how to engage them in the workshop, because if you use PPTs, teachers will say no sir, no sorry, they will not answer the questions. Here you call them on the stage. Like I always wanted to know कि इनको interactive कैसे बनाया जाए, and I see that today, which is very interesting, and this is something I will provide further to other resource persons as well. No sir, no, don't tell anybody. Like to make it interactive. No sir, this is, I'll tell you one thing. I request you, as one of the successful great company, you have been part of that, and you are intellectual personality also. And do you have any question to ask me regarding education and all? So regarding education, Or anything else connected with the workshop topic, effective teaching? so effective teaching, I can say you are doing a great job and you know a lot than me. Then I have to, I guess the teachers who should ask more and more questions, especially those who have not even asked once. I want those teachers to ask. Sir, for us, it is first time. First time, I have invited sir to interact with us, because you are not only the marketing man, you are an intellectual personality. So big round of applause for you, sir. Mr. Gupta. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks for joining us. Thank you, sir. Thank you, everyone. Well. So, Tarseem sir, we have a long session with us, and आपके दिमाग में और भी बहुत कुछ आएगा, तो आप बोलते जाएंगे और मैं भी अवेलेबल हूँ. आइए सर, आप सभी लोग जो लोग लेफ्ट हैं, लेफ्ट ओवर, प्लीज विल डिस्कस. हाँ ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच. मीनवाइल यू अगेन यू कैन पॉप. Okay. हाँ, पॉप अप अगेन Okay. प्लीज बेटर. Thank you so much. sir. यस सर, आइए. आइए मैम, आप लोग सभी लोग आइए. मैथ्स टीचर, ओके ओके, प्लीज मैथ्स. तो यू टेकिंग अप टू 8th. हाँ, thank you. Yes, sir.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू इंट्रोड्यूस योर, आ जाइए आप भी, कुछ नहीं होता, ऐसी पकड़ लो आप। Myself Ajay Kumar. I read from class 3rd to 8th mathematics of all subjects of all classes. हाँ Of all जी। classes, हाँ। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, कितने लोगों का मैथ्स बहुत बुरा लगता है? हाथ खड़ा करो, इधर आ जाओ तभी देखोगे इसमें तो। कितने लोगों को मैथ्स बहुत बुरा लगता है? कम दिस साइड, इंक्लूडिंग टीचर्स, इंक्लूडिंग चेयरमैन सर। पर चेयरमैन सर का मैथ्स अच्छा होगा। नाउ फॉर 2-3 मिनट्स वी विल डिस्कस कि ये मैथ्स खराब क्यों लगता है। 90% तो टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल जो मैथ्स पढ़ाते हैं। जो मैथ्स, आपकी बात नहीं कर रहा सर, वो मैथ्स को इंटरेक्टिव ही नहीं कर पाते। टीचर की सबसे बड़ी गलती क्या है कि वो अगर बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाएगा तो बच्चे उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मेरा मानना यह है कि अगर टीचर का कंटेंट अच्छा है, वो कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर रहा है, एक्सप्रेस बड़ा अच्छा कर रहा है, तो बच्चे उसके साथ कनेक्टेड होंगे, रिस्पेक्ट भी होगी। एग्रीड? मैं हर चीज़ एग्जाम्पल के साथ कोट करता हूँ। एक मित्र बोलते, प्रोफेसर साहब जो तुसी पढ़ाते हो तो थोड़ी क्लास च बच्चे बहुत हंसते हैं, आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत वधिया गल है। मैं कहा मेरा रिजल्ट तेरे तो 10,000 गुना वधिया। कहते पर तुसी मेरी क्लास देखो, PDS होंदा है। मैं कहा PDS, पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने कहा ठीक है। तो I've got a habit of observing. तो he was teaching for 1.5 hours in our school system. तो मैंने मोबाइल से उसकी क्लास की बैक बेंचेस पे जो बच्चे बैठे थे वीडियो बनाई। कोई तो गालियाँ लिख रहा है, किसी ने छुपा के रखा हुआ है मोबाइल, वो व्हाट्सएप चैट मार रहा है। और जैसे वो एक दिन ही उसी जगह पे क्लास लगाई थी, बाकी तो वो अपनी जगह पे लगाते थे। 3 दिन हमें साफ करने में लग गए थे कि बच्चों ने जो उसको बेंचों पे गालियाँ लिखी थी। लॉजिक क्या है? स्टूडेंट आज की डेट में आप में फ्रेंड भी ढूंढता है, पेरेंट्स भी ढूंढता है, दोस्त तो है ही, आप भाई बहन भी हो, रिश्तेदार भी हो, टीचर भी हो। ये सबका हाइब्रिडाइजेशन करके, इसको जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उसमें से बन के मॉडर्न टीचर निकलता है। क्या आप हो? वो जो पुराना ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स कल्चर है वो खत्म हो गया। आज का जो मैथमेटिकल कल्चर है वो बहुत इंटरेक्टिव हो गया। यस सर। जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं बच्चों को कैसे मैथ्स सिखाऊंगा। अब ये 8th क्लास का फार्मूला है सर? यस सर। क्या लिखा मैंने? A square minus B square equals to A plus B A minus B। सभी ने सीखा हुआ है ये? अब मैं और सर दोनों चले गए और हमने 20-20 रुपए के 2 समोसे ले लिए जो अभी खाए हैं। उसके बाद जैसे ही हमने समोसा खोला, एक में कॉकरोच निकला, एक में मक्खी निकली। तो मैंने कहा वापस करते हैं सर। जैसे ही हम वापस करने गए तो वो दुकानदार बोलता सॉरी। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा 50 रुपये वापस कर दो। कहता 50 कैसे दूँ? 40 दिए हैं आपने। गलती है मेरी, 10 रुपये को फाइन है तो मैं ज़्यादा भी दे दूंगा, लेकिन 40 दिए तो हिसाब की बात करो, धर्म की बात करो। मैंने कहा यार तू कितना पढ़ा हुआ है? कहता भाई साहब मैं BCom हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैंने कहा ये बता ये क्या है? कहता A square minus B square A plus B। मैं कहता हाँ जी, सभी ने पढ़ा हुआ है ना। इफ़ A is equal to B, A square minus A square A plus A minus A, है ना? A is taken out, 2A, A minus A, this gets cancelled. 1 is equal to 2,
एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, हम वो हैं जो 2 और 2, मैं कहा 20 और 20 40। अब बच्चा इसको देख रहा है, उसको मैथ्स कैसा लगेगा? इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन ये गलत है। लॉजिकली ठीक है, लॉजिकली ठीक है, हाँ, पर ऐसे अगर ऐसे देखेंगे ओरिजिनल में तो ये चीज़ें गलत हैं। अगर हम ऐसे एक और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, 0 डिवाइड 0 इक्वल्स टू 2, हम ये भी बोल सकते हैं कि आज 0 को 0 से डिवाइड करें 2 आता है। सर कैसे पॉसिबल है? ये तो हो नहीं सकता। 0 को 0 से डिवाइड करें, आज तक तो हमने यही पढ़ा है कि 0 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो वो तो 0 ही आता है, 2 तो आ नहीं सकता। पर अगर हम लॉजिकली इसको लेके चलेंगे तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ भाई 0 डिवाइड से 0 2 के बराबर होता है, तो लॉजिकली हम इसको बोल सकते हैं। वी अजय सर, क्या बात। इंडिया में 2 ही चीज़ें हैं, मैं और अजय सर, बाकी तो गिल्ला कूड़ा सूखा कूड़ा। अब इसमें गलती क्या है? मैंने बोला यार गलती पकड़ दे, तेरे को मैं 40 दे दूंगा, नहीं तो 50 दे दे। बड़ी जगह से हमने 50 रुपये कमाए जी। फिर आखिरकार एक बंदे ने पूछ ही लिया, कहता सर आप ना 50 की जगह 500 ले लो, गलती बता दो। मैं कहा भाईजान ये है 0, ये है 0, 0/0 कोई माई का लाल और कोई माई की लाली आज तक एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई, ये डिफाइंड ही नहीं है, इनडिटर्मिनेट है। तो बच्चों को ये अगर हम ये चीजें सिखाएं, 40 मिनट की अगर क्लास है, पहले 10 मिनट तो पढ़ाना ही नहीं है, उसमें फॉर्मूला ही रिवाइज करवाओ आप उसको। फॉर्मूलाई में रैंडम रिवीजन होनी चाहिए, नॉट मैथ्स इन एवरी सब्जेक्ट। वो पिछले दिन के या पिछले टॉपिक्स के कनेक्ट हो जाएगा आपका। ये इफेक्टिव टीचिंग टूल जो है, ये मैंने काफ़ी साल यूज़ किया है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, नेशनल लेवल पे मिले हैं। रिटेंशन बहुत ज़रूरी होती है। हम सब गजनी हैं, बहुत जल्दी भूलते हैं और पढ़ाई के बाद तो 1 सेकंड में भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है वो बड़ा क्विकली होता है हमारे पास। पढ़ाई में तो जैसे पेट्रोल उड़ता है ना, वॉलेटाइल, ऐसे होता है। तो लॉजिक क्या है? आप बच्चों से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए रैंडम रिवीजन डेली करो सर, 10-15 मिनट। यस सर, फॉलो। यस सर, यस। तो थिंग्स विल बी सो मच क्रिस्प एंड क्लियर। और बच्चों को मैथमेटिक्स जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो फोबिया हमारे देश में, जैसे 1000 साल हम गुलाम रहे ना, उसमें हमारा डीएनए भी बदल गया मैथ्स का। हमारा मैथमेटिक्स ही बड़ा वीक हो गया। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपकी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, सब जिंदगी ही वीक है। आर यू सरप्राइज्ड? आई एम नॉट। तो फिर आप आंसर करो कैसे है। क्योंकि जो मैथमेटिक्स है हर एक सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल एसएसटी में हिस्ट्री में चले जाएंगे तो डेट्स के रूप में हमें दिख जाएगा कि हाँ इस डेट्स को ये हुआ था, इस डेट्स में ये हुआ था, ठीक है। साइंस में जाएंगे तो फिजिक्स में हमें ये देखने को मिल जाएगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में क्वेश्चंस में वहाँ भी हमें देखने को मिल जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में रोमन लैंग्वेज जो है, ठीक है, रोमन लैंग्वेज में हमें देखने को मैथमेटिक्स मिल जाएगा। और हिंदी में तो हिंदी की जो है मैथमेटिक्स है, हिंदी का अलग से लैंग्वेज में, तो इसमें हमें ये सारे सब्जेक्ट्स में जो मैथमेटिक्स है हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी का मैथमेटिक्स में ही प्रॉब्लम होगी तो फिर इन सारे ऑल सब्जेक्ट्स में उसको प्रॉब्लम होगी, तो फिर डेफिनेटली ऑल में वीक रहेगा। ही इज वेरी स्वीट। भाई साहब, मैथ्स में अब मेरा आंसर दूं, कोई और देना चाहेगा? पार्ट ऑफ वर्कशॉप है ये, इफेक्टिव टीचिंग। मैथमेटिक्स जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव होते हैं, उससे हमारे मेंटल रिफ्लेक्शंस बढ़ते हैं। मुकेश जी का मैथमेटिक्स बहुत गजब है। ये गाड़ी इतनी अच्छी चलाते हैं, कट मारते हैं 160 की स्पीड पे, ठीक है। तो ब्रेन के रिफ्लेक्शंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, हमारा ब्रेन बड़ा एक्टिव होता है। उससे क्या होता है, आप कोई भी टेस्ट ले लो उसमें मैथ आएगा ही आएगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दैट इज मैथमेटिक्स। तो इफ़ यू आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स तो आपके ब्रेन की एक्टिविटी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है मैथ से, उससे एक हार्मोन डेवलप होता है एंडोर्फिन।
सुना है किसी ने नाम? इंडोर्फिन डेवलप होता है, फीलिंग ऑफ वेलबींग। जब आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हो और बड़े सुंदर अपने आप को फील करते हो, रोज बोला करो कि दुनिया में मुझसे ज़्यादा हैंडसम, वैसे है भी नहीं, कोई बंदा नहीं है, ठीक है? दुनिया में मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई इंसान नहीं है, दुनिया में सबसे ज़्यादा समझदार इंसान मैं हूँ। जब ये फीलिंग लोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको हेल्प करेगा, आप गजब करोगे। आप अगर डिमोरलाइज हो जाओगे, ठीक है? एक बार मुझे याद है, आई वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट, तो रास्ते में मुझे एक सर मिल गए पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। कहते यार तुम मेरे को जाते जाते जीरकपुर से पहले ड्रॉप कर देगा? मैं कहा हाँ। मैं कहा अंकल आप कहाँ से आ रहे हो? कहता मैं पटियाला आया करता हूँ, वहाँ है एक शॉप हाई-फाई इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं कैसेट फिल करवाता हूँ। आई एम टॉकिंग ऑफ सम ईयर्स जब कैसेट्स बड़ी फेमस थी, बड़ी अच्छी मेरी चॉइस है। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कैसेट डाली मेरी कार में, तो पहला गाना चला, जिंदा हूँ इस तरह गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। अब जैसे हम लोग अपने टेस्ट के गाने सुनते हैं, एट दैट टाइम आई वॉज अ स्टूडेंट लाइक, मैंने कहा यार क्या बेकार सा गाना। मैं कहा अंकल इसमें एक AMSS है। कहता क्या? मैं कहा ऑटोमेटिक सेंसर सिस्टम, अगर मैं प्रेस करूँगा ना ऑटोमेटिकली अगला गाना आएगा। कहता कैसे? मैंने स्किप कर दिया, दबाया, टक, अगला गाना चला। क्या? आग है लगी हुई हर तरफ यहाँ वहाँ, जल रही ये जमी जल रहा आसमां। ठीक है भाई। मैं कहा अंकल चक कैसा है? बहुत बढ़िया। फिर दबाया, फिर अगला गाना आया, क्या? तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, मुझे वापस बुला ले। मैंने ब्रेक मारी। कहता क्यों? मैं कहा भागड़ा है, मारूं छाल इसमें। कहता क्यों? मैं कहा अंकल आप ऐसे गाने सुन के अभी तक जिंदा हो। मैं ये नहीं कहता वो संगीत बुरा है, सुनो। मैं ये नहीं कहता वो कोको कोला में लस्सी वस्सी वो भी चलता है, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि पॉजिटिविटी आपके चेहरे पे आनी चाहिए। अगर आपके चेहरे में पॉजिटिविटी नहीं है तो यू आर डिप्रेस्ड पीपल, तो बच्चा नहीं पड़ेगा आपके पास। लिख के देता हूं। और स्टाफ ही आपकी छेड़ रख दो, सड़ू आ गई, सर तो सड़ी रहती है, मैं तो इससे बात ही नहीं करती। हेलो मैडम कैसे हो? बढ़िया, और अच्छा है, ठीक है, चलो बदफा हो। लॉजिक इज व्हाट? लॉजिक इज व्हाट? छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा किसी के पास एकदम से गोद में चला जाता है, यस सर, और किसी के पास जाता ही नहीं। उसको पॉजिटिविटी का पता है। यू अंडरस्टैंड? उसको पॉजिटिविटी का पता है। आई रिमेंबर in Shimla there is one place Tripti, I was just taking coffee there। 3-4 साल के दो तमिलियन बच्चे मेरे पास आकर बोलते, हेलो अंकल कैन आई हैव वन सेल्फी विद यू? मैं कहा व्हाई नॉट। मैं कहा व्हाट मेक्स यू टू कम टू मी? लाइक योर हेयर स्टाइल। मैं कहा ओके फाइन, राइट। तो वो बच्चे, मैं जानता नहीं हूँ, स्टिल द फोटोग्राफ इज विद मी, आई कैन शेयर विद यू। वो क्या है? पॉजिटिविटी। हमारे कंट्री में पॉजिटिविटी नहीं है। हमारे कंट्री में क्या है, एक बंदा कार लेके आया है और दूसरा डेवलपिंग बंदा जो है वो जाके उससे बड़ी लेके आएगा। यहां पर बंदा जाके पंडित के पास बोलेगा कोई ऐसा उपाय बताए इसका एक्सीडेंट हो जाए। तो पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट करेंगे जब तक आप पॉजिटिव नहीं हो? और सर मैथमेटिक्स जो है उसका एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस, फॉर्मुलाई, बट उसमें आपको नए नए टेक्निक्स निकालने पड़ेंगे, नई नई चीजें सोचनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आते ही मैंने बोला था गुड टीचर इज ऑलवेज ए गुड स्टूडेंट। तो वो हैं आप, वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आई थिंक बाकी लोग तो मदर टीचर्स करें ना करें, बट मैं आपको रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप एक्स्ट्रा क्लास जरूर शुरू कर दो। आई विल हेल्प यू। जब भी आपको मेरी ज़रूरत है कि विपिन सर आज संडे को मैं क्लास नहीं ले रहा, आप ले लो, मैं ले लूँगा। I'll send the link to you। मैं इस स्कूल को अपनी तरफ से, ये गिफ्ट है मेरा, कह लो हैप्पी दिवाली गिफ्ट। जब भी आपको मेरी ज़रूरत है ऑनलाइन, आई एम विद यू सर, संडेज को। और उसकी स्कूल से कोई फीस चार्जेस नहीं है।
मेरा सब्जेक्ट साइंस है एंड आई कैन हेल्प इन मैथ्स आल्सो, तो मैं सर का भी असिस्टेंट बन सकता हूँ। वो आना मैडम जरा आप भी वॉक करके। हाँ आइए आप। मुझे तो ये जब मैं अगर स्कूल लगा होता तो मैं बोलता है ये क्लास कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा। तो ये एक्चुअली मैं साइंस को प्रमोट करता हूँ, तो जब भी मरा सा मत बोलो, इधर आ जाओ, डरते क्यों आप लोग। तो आप लोगों के साथ खड़ा हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है। पर्टिकुलरली आई बिलोंग टू रूरल एरिया, मैं गांव का रहने वाला हूँ। तो अब आपकी कॉम्प्लिकेशंस मैथ्स में क्या है विच यू विश टू आस्क मी। बड़े सारे बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिनको अर्थमेटिक में प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है। इन केस हमारी तरफ से ज़्यादा इनिशिएटिव होने के बाद भी फिर भी वही उनकी सेम प्रॉब्लम्स रिपीट होती हैं कुछ देर के बाद। मतलब कि उस टाइम आ जाएंगी, 2 दिन तक रहेंगी ज़्यादा, फिर तीसरे दिन चौथे दिन आके फिर वही सेम ट्रैक पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हमें किस तरीके से डील करेंगे ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये आज की प्रॉब्लम नहीं है उनकी, जो मतलब फिर लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो जाएगी। आज वो अगर आज छोटे लेवल पे नहीं सीख पाएंगे तो फिर बड़े लेवल पे उनको जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ऐसे बच्चों को हम कैसे डील करेंगे ताकि उनको जो इन फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। मैं बोलूँगा तो मानोगे अगर सही लगा तो? ठीक है, डेफिनेटली। आप कभी किसी भी पार्टी में गए हो? हाँ। वहाँ वेजिटेरियन पार्टी में क्या मिलता है खाने को? एक पनीर की आइटम, हाँ, बाकी दाल वगैरह, एक दाल मखनी, एक नान, मशरूम, यही मिलता है ना? मिलता है ना सर? यस। और थोड़ा सा पंजाब टच हो, जम्मू टच हो तो एक टेंट अलग लगा होता है, उसमें अलग से चल रहा था कुछ, है ना? वो तो होता ही होता है। यस सर। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर है सर, आ जाओ इधर है। जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कुछ क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। हमें फेल करके किसी को लेना ही क्या है? मान लो आपने किसी बच्चे को फेल कर दिया, वो पहले तो आपको गले मारेगा, उसके बाद स्कूल में आएगा, वो किसी दूसरे स्कूल में जाएगा, बोलेगा ऐसे करो आपने टीसी ले आओ पास का, मैं आपको एडमिशन दे दूंगा। जो बच्चा फेल हो गया ना सर, उसके पास हर कैपेबिलिटी है टॉप करने की। और ये छोटी क्लासेस में तो कोई एग्जाम मायने नहीं रखता। सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाओ, डेली एक क्वेश्चन ऐसा रटा दो उनको, अगर कम से कम 40% 50% क्वेश्चन वही डालो जो आपने क्लास में बहुत रटाए हुए हैं। फिर इस तरीके से तो उनकी क्रैमिंग हो जाएंगी ना, मैथड तो नहीं सीख पाएंगे। ज़्यादातर प्रैक्टिस बच्चों को देखो जी, ऐसा है, क्रैमिंग भी जरूरी है, क्लासरूम प्रैक्टिस भी जरूरी है, एग्जामिनेशन अलग से जरूरी है। पॉइंट तो सर ये है कि बच्चे को आना तो वो भी पार्ट चाहिए ना। वो तो जब आप कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस की दबा के प्रैक्टिस करवा रहे हो, वो आएगा। नहीं, वो तो आएगा सर, जो उनको आ जाता है वो तो मजा, अब मजा आ रहा है सेमिनार। बात सिर्फ उतनी है कि जो उनको नहीं आता है हमें तो वो भी सिखाना है ना उनको। अगर उनको अर्थमेटिक में या कैलकुलेशन पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो सिखाना तो हमें वो भी। मैं एक नलायक स्टूडेंट था टिल 9th, जी बहुत नलायक। जी कोई बंदा ये नहीं बोलता था कि ये बंदा जिंदगी में कुछ करेगा। जी है हमारे यहाँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मेरे फादर बोलते थे कि तेरे को भैंसे ले देंगे। मैं भी सोचता होता था कि भैंसे लेंगे, उसके ऊपर बैठ के, जो भैंस के ऊपर बैठ के मजा आता है ना, मर्सिडी पे नहीं आता। आप गांव के नहीं हो, मैं गांव का हूँ, उसमें बहुत अलग से फील आता है। मैंने कहा यार भैंस लेंगे, वेर का फेल कर दूंगा मैं। सोच क्या है, पढ़ना नहीं है, भैंसे लेके वेर का पंजाब की प्रोडक्ट है मिल्क की, वो फेल कर दूंगा। सोच ये बड़े वाली। फिर एक टीचर ने मेरी लाइफ ही बदल दी। वो थे प्रोफेसर सुरेंद्र लाल, जो प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स के टीचर हैं। तो मैम आई टॉप्ड, आई सेलेक्टेड इन IIT। क्रैक नहीं होती लोगों से, तो कुछ पता नहीं होता। जी हाँ। अगर आप ही नेगेटिव हो पहले से तो फिर आप क्या करोगे? बच्चा जो एग्जाम में बैठने जा रहा है, हमारी कोशिश ये होती है कि उसको पॉपुलर क्वेश्चंस ही डालो, पॉपुलर क्वेश्चंस। 8वीं का बच्चा फेल करके क्या कर दोगे बताओ मेरे को? आप नहीं, वो कहीं और पढ़ लेगा जाके, उसने पढ़ना तो है। हो सकता है वही बच्चा कल को 10th में आपके JK बोर्ड में टॉप कर जाए और बोले यार 8वीं तक तो ये एवरेज था। हमें उनकी तरफ
वो जो कमजोर स्टूडेंट है ना, वो आपके स्कूल की यूएसपी होनी चाहिए। टॉपर्स, सर जी टॉपर्स कभी किसी के सके नहीं हुए। जो बच्चा टॉप करता है ना, वो यही सोचेगा तू इतना पढ़ने में लायक है, तू पहले जब आया था, वो नहीं देखेगा उसको क्या आ रहा है। वाई डोंट यू चेंज एंड गो टू जम्मू, वाई डोंट यू चेंज गो टू श्रीनगर, मेरी बात को फॉलो करते हो? वाई डोंट यू चेंज एंड गो टू लद्दाख, वाई डोंट यू चेंज एंड गो टू टॉप ब्रांडेड स्कूल्स? नहीं, आपको करना क्या है, आपने बच्चों के रिजल्ट्स को कैसे 8वीं 9वीं तक तो फेल वाला कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड करने की कोशिश करो। मुझे मालूम है कुछ लोगों को ये चीज़ें खराब लगेंगी, बट मेरे को ये अच्छी लगती है, मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या करूँगा आपकी जगह पे सर, जो इंटरेस्ट नहीं लेते उनको कुछ सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन करवा दूंगा। सर पूरे मैथ्स में ना 100 क्वेश्चन के डिफरेंट टाइप्स नहीं है, वो सुबह कभी तो आएगी, वो पढ़ना शुरू। मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, मैं एक ऐसा टेस्ट डालता हूं जिसमें सबके स्कोर अच्छे आते हैं, फिर एक ऐसा टेस्ट डालता हूं जब उनकी हवा चली होती है ऊपर, फिर पंचर भी करता हूं। तो जब टेस्ट में मार्क्स बड़े अच्छे आए होते हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बनता है। मुझे कॉन्फिडेंस लेवल भी देना है बच्चों को। मैं बच्चों का अगर आत्मबल ही नहीं जगाऊंगा, वो पढ़ेगा नहीं। हमने इंटरेस्ट डालना है, हमने उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है। इंटरेस्ट कैसे आता है? मार्क्स से। बच्चा टेस्ट से नहीं डरता। हमें पता है कि बच्चों को गुड एक्सीलेंट वगैरह देंगे तो वो उनको और एनकरेज होंगे वो कि हम और अच्छा करेंगे। मेरे बच्चे फेलियर को तो नहीं एक्सीलेंट लिखेगा, नहीं उनको नहीं, पर जो कर रहे हैं कोशिश, जैसे किसी ने पहली बार ही हमें कोई क्वेश्चन बताया तो उसके लिए हम क्लास में क्लैप करवा दे जैसे, या फिर गुड दे दें उसको, तो उसका और ज़्यादा हौसला बढ़ जाएगा ना कि हम आगे से 2 क्वेश्चन करेंगे। भाई बड़ी तेज है, इधर आ जाते अब इसको पकड़ो, हो जाए शुरू। नाम क्या है आपका? शालिमा सर। शालिमा मैम जी। एटलीस्ट आप जम्बाल नहीं हो। नहीं नहीं ओके, नहीं तो सब जम्बाल नहीं। अच्छा शालिमा मैम, आप जी। अब बताओ कि आप कहते हो कि उड़ा देने चाहिए? नहीं हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, अब पढ़ाते तो हैं पर मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, कि हाँ भाई आपको जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको भी करना चाहिए। मैं सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा हूँ आपकी क्लास में, जी। ठीक? खूब खुराफात करता हूँ। हाउ विल यू हैंडल मी देन? सर मैं तो अपनी तरफ से, मतलब मेरा ये है कि मैं ज़्यादातर बच्चों को बोलने से ही हैंडल करती हूँ, कि अपनी बातों से। ये मेरा है शुरू से कि अगर मैं एक बार ही समझाऊँ बच्चों को तो फ़र्क ज़रूर पड़ता है। मेरे को समझाओ जी। अगर मैं, मतलब ये बात है कि अगर मैडम आप बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते, मैंने नहीं पढ़ना, मेरे को पढ़ाई नहीं अच्छी लगती, मैं पंचरों की टायर की दुकान खोलूंगा और मैं मोमोज भी बनाऊंगा। नहीं सर, ऐसा जब पेंचर लगा दिया, जब ये मोमोज कोई भी भूख लगी खुद खा लिया। अब बताओ मेरे को कैसे हैंडल करेंगे? ऐसी बात नहीं है सर, मैं आराम से हैंडल करने की कोशिश करूँगी। स्टूडेंट हूँ जी, तो मैं प्यार से बोलूँगी कि बच्चे ऐसा नहीं करना है, हमें प्यार से पहले तो पढ़ाने की कोशिश करूँगी। नहीं, अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, किसी न किसी पोस्ट पे तो पहुँचोगे। अगर ऐसा करोगे तो फिर उतने में ही रह जाओगे, अगर पढ़ोगे तो बड़ा बनोगे। जी। हाउ इज दिस पीपीटी सर? बढ़िया, हमने अभी बनाई है। सर फिर तो उसके बाद थोड़ा बहुत तो चलेगा, पर फिर वही बात है कि पहले तो प्यार से ही कोशिश की जाएगी। चलो, अब मुझे पता लगा कि मोस्ट ऑफ टीचर्स क्यों फीमेल्स होती हैं, क्योंकि मेल बच्चे बहुत जल्दी समझ आते हैं। यस मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलो ये भी ठीक है। मान लीजिए मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मेरे को आप साइंस पढ़ाते हो, मेरे को साइंस से बहुत नफरत है, तो आप किस तरह से इंड्यूस करोगे मेरे अंदर इंटरेस्ट? सर मैं, मतलब पहले तो हम जो भी हमारा कंसेप्ट है उसको पहले तो बच्चों को ये ऐसे, मतलब जैसे हम करते हैं, ग्रीट करते हैं पहले, फिर उनका पूछते हैं कि हाउ आर यू वगैरह, बस सब बच्चों से अच्छे से बात करी, देन थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट बन जाता है उनका। और उसके बाद फिर उनसे पिछले जो हमने कल का कंसेप्ट किया है उसको वो रिवाइज़ करवाओ। उनके बाद हमने जो अपना नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो थोड़ा बहुत रियल लाइफ के साथ एग्जाम्पल्स उनकी कनेक्ट करो। उसके बाद उनका खुद से ही थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जो डायग्राम्स वगैरह हैं उनके बच्चों की, कोई भी कंसेप्ट जो हम लेने वाले हैं उसके प्रॉप्स जो भी होते हैं उनका करो थोड़ा बहुत, तो मतलब मैक्सिमम बच्चे इंटरेस्टेड हो जाते हैं पढ़ने में। अब मैं एक शरारती स्टूडेंट हूँ जी।
मैम क्या है? मैम हनुमान जी उड़ते थे, क्यों उड़ते थे बताओ। जी हाँ सर, आते हैं ये वाले भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं आगे पूछ रहा हूँ, अब आप मुझसे पूछो। जी सर, आप बता दीजिए। अब आप स्टूडेंट बन जाओ शरारती, अब मुझसे पूछो। जी सर, फिर आप बता दीजिए मुझे कि मुझे कैसे बताना होगा कि हनुमान जी उड़ते थे। बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। उसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये रब करना पड़ेगा आपको, कष्ट है कि बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ कि हनुमान जी उड़ते हैं, तो क्या सच में ये संभव है? 1000%। पहली बार एक्सक्लूसिवली इसी चैनल के ऊपर हम बताने जा रहे हैं। ये सोडियम होता है, सोडियम 11 होता है, आपको पता ही होगा। इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो ये Na+ हो जाता है। और ये क्लोरीन है, ये 287 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, ये Cl- हो गया, ये NaCl बॉन्ड बन गया। अब जैसे ही नमक महाराज को आप पानी में डालते हो तो ये Na+ डेल्टा Cl- डेल्टा ये अलग हो गया। तो जब इसमें वाटर डाइलेक्ट्रिक हुआ तो ये डिसोसिएट हुआ, एक जब इसमें पार्टिकल एक्सचेंज किया इलेक्ट्रॉन तो ये अट्रैक्ट हुआ। अगर यही पार्टिकल एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस कर दे तो ये रिपेल होगा। जब सेब जमीन पे गिरा था तो वो उससे पहले भी ग्रेविटी थी, अभी भी ग्रेविटी है। न्यूटन सर ने कोई ग्रेविटी डिस्कवर नहीं की, फॉर्मुलेट कर दी थी। लेकिन हुआ क्या था, जब सेब नीचे गिरता है तो ग्रेविटोन एक्सचेंज होता है। जब हम एंटी ग्रेविटोन प्रोड्यूस करते हैं तो सेब रिपेल होता है। तो वो एंटी ग्रेविटोन प्रोड्यूस कर लेते थे संपंधन से, जिसको बोलते हैं रेजोनेंस, जिसको बोलते हैं वाइब्रेशंस। आर यू सरप्राइज्ड? ये सच्चाई है। क्या आपको जानते हो, हनुमान जी की तरह आप ही की एज का बंदा जिंदा है और वो उड़ता है। एनीबडी हु नोज? स्टीफन ब्रैडफोर्ड उसका नाम है, उसको डायनामो मैजिशियन भी बोलते हैं। हिस्ट्री टीवी 18 पे आते हैं वो, और उनके यूट्यूब्स पे भी है। तो वो वेदों से उन्होंने ये टेक्निक सीखी है। तो आप कभी गो थ्रू किया है वेद्स? सूरज के इर्द गिर्द ग्रह घूमते हैं ना? किसने बताया? नहीं, वेद, अभी वेद की बात नहीं करते हम, ये हम बोलते हैं कॉपरनिकस ने। और कैपलर ने फॉर्मुलेट किया कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन in nearly elliptical orbits with sun as one of the foci. So long the planet is revolving in a particular orbit, neither gain energy nor lose energy. जिनका मैथ कमजोर है उनको अच्छा नहीं लगेगा ये, ठीक है? ओके, एंड सो ऑन। ये कब की बात है? 400-500 साल पुरानी। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतुश्च बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुआ सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। ये 6000 साल पहले वेदों में बता दिया था कि इस ब्रह्मांड में जो सूरज है वो फिक्स है, घूमता वो भी अपनी एक्सिस पे है, और सभी ग्रह उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो आप किसको सॉलिड मानोगे? वेदों को मानोगे ना? तो एक वैदिक मैथमेटिक्स है, आप उसको एक्सप्लोर करो। उसमें ये 2 + 2 5 मैंने वहीं से लिया है, उसको एक्सप्लोर करो। उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप पता क्या सोचते हो? स्कूल आए, टीचर की आत्मा आपके अंदर आ गई, 3 बजे टीचर की आत्मा चली गई। टीचर तो 24/7 है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं सर? और कितने घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 1 घंटा 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। 24 × 60 × 60 86,400 सेकंड्स होते हैं सर 1 घंटे में। 86,400 और गुरदासपुरी 86,400। तो इतने सेकंड्स में हम लोग टीचर ही हैं सर।
ओके तो वो टीचिंग जो है वो आपको कैसे और बेटर करनी है, उसके लिए आपने कागजों में तो बोल दिया गुड टीचर इज ऑलवेज ए गुड स्टूडेंट। रूल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, रूल को इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। वो करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ऐसी वेले हैं, सनु कोई काम ही नहीं है। नो, डू इट वट एवर यू डू, बट यू हैव टू फाइंड सम टाइम फॉर योर सेल्फ स्टडी जोन। तो वो जो मैं आपको बनाया इंटरनेट आपका स्टडी रूम, हर टीचर का एक अपना स्टडी चैम्बर होना चाहिए घर में। ना भी हो टेबल पे बैठ के 1 घंटा रोज आप अपने पढ़ाई करो, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड देखो, आपको गजब गजब की चीजें मिलेंगी। पहले तो आपको जम्मू जाके या श्रीनगर जाके किताबें लानी पड़ती थी, अब आपके इंटरनेट थ्रू हर चीज मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो सर होप दिस विल बी इफेक्टिव। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आइए। थैंक्स। नहीं अरे रुकना, यू आर सपोर्ट मी प्लीज जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इधर आ जाओ मैम, कुछ नहीं। Good afternoon, sir. My name is Jyoti. Sir, I teach social science from class 3rd to 7th. So my question to you, sir. Sir, जैसे हम SST पढ़ाते हैं और आपको पता है कि SST में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं उसके अंदर। कौन कौन? सिविक्स है, हाँ। सिविक्स है, ज्योग्राफी है, नागरिक शास्त्र, हाँ, आगे ज्योग्राफी भूगोल, हाँ, और इसके बाद हमारा हिस्ट्री आ गया, इतिहास। यस। जैसे आपने बोला इतिहास इतना बड़ा, तो सर हम जब भी बात करते हैं तो अगर हम बात करें ज्योग्राफी की तो बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। फिर सिविक्स की बात आएगी, उसको भी पढ़ेंगे। जैसे ही हम हिस्ट्री पे शिफ्ट करते हैं तो सर वहीं पे इंटरेस्ट कुछ कम हो जाता है। कैसे बनाए इंटरेस्टिंग? हाँ, तो मेरा क्वेश्चन यही है सर कि हम हिस्ट्री को कैसे बनाए इंटरेस्ट। श्योर, अभी लो 2 मिनट में क्विक सर्विस। इधर खड़ो हुन तुसी सारे डरदे क्यों? व्हाई यू फियर सो? आर यू कैमरा कॉन्शियस? नो। कम ऑन, लुक। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट गांधी जी। आज मैं आपको गांधी जी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। मैं वो नहीं हूं रिसोर्स पर्सन, प्रैक्टिकल। यस, गांधी जी को जानते बेटा? यस। कौन थे वो? सर वो राष्ट्रपिता, हाँ राष्ट्रपिता जो थे वो है, थे, रहेंगे भी। गांधी जी ने क्या किया था? फ्रीडम स्ट्रगल। चलो इमेजिन करो अगर गांधी जी ने आज की डेट में फ्रीडम स्ट्रगल करनी होती तो कैसे करते? मैडम कैसे करते? पहले तो गांधी जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, इंस्टाग्राम आईडी बनाते, उस पर रीले डालते, दुनिया हैं, ओके, मेरा भारत महान, रघुपति राघव राजाराम, ठीक है। फिर गांधी जी क्या करते? फेसबुक अकाउंट बनाते। फिर गांधी जी फ्रीडम स्ट्रगल की ब्रांडिंग करते, है ना। पहले ये चीजें नहीं थी, तो गांधी जी ने ऐसे किया, तो उससे बच्चा कनेक्ट होता है। उसके टेस्ट की बात करो। कुनीन है बट कोटेड विथ शुगर। अब हिस्ट्री जो है उसमें बच्चा इंटरेस्ट इसीलिए नहीं लेते, एक तो हमारी हिस्ट्री ही बेकार है, बुरा मत न मानना, पढ़ाई ऐसा जाता है जो हमारे साथ कनेक्टेड ही नहीं है। आई प्रे एंड रिक्वेस्ट गवर्नमेंट टू चेंज इट, ओके। तो मैंने भी मैम हिस्ट्री के पेपर में शोले फिल्म की स्टोरी लिख दी थी और मेरे को मार्क्स भी मिल गए थे। लॉजिक क्या है? वो टीचर हेडलाइन ही पढ़ता था, बाकी ठिक्के लगाता था। जितने ज़्यादा पेजेस भर दो उतने ज़्यादा मार्क्स मिलते थे पहले। अब का पता नहीं, अब तो मल्टीपल चॉइस आ गया। नहीं ऐसा नहीं सर, अभी अगर लिखे भी तो मैं कहती हूँ कि मैं पढ़ती हूँ, मैं ऐसे मार्क्स नहीं देती। बच्चे लिखते हैं ऐसे अभी भी। आपका नाम? ज्योति। ज्योति, रियली आप रोशनी फैला ही रहे हो, ठीक है ना। देखो मैम, ऐसा है कि मैं ये वर्कशॉप कर रहा हूँ। इफ इट इज़ नॉट गुड तो आई नो वेयर इट इज़ नॉट गुड, इफ इट इज़ वेरी गुड आई ऑल्सो नो वेयर इट इज़ गुड। तो जब आप पढ़ा रहे हो आपको पता है कि ये आपका सब्जेक्ट कैसे आप इसको क्रिस्पी बनाते हो। अब एक माँ है, वो कहती है कि मेरा बेटे की प्रॉब्लम है। मैं क्या हुआ? कहते हैं एक ही रोटी खाता है। मैं क्या हुआ फिर? कहती सर मैं बड़ी परेशान हूँ, दूसरी रोटी खाते ही नहीं है। मैं कहता तो एक काम कर, इसको 2 रोटी खिला, इसको एक ही खिला। कहते क्या? मैं पेड़ा डबल कर दे। आटे की क्वांटिटी डबल है। तो बच्चों को आप कैसे कनेक्ट करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाओ। और बताएं
थोड़ी सी आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते हो। एक्चुअली 90% टीचरों की प्रॉब्लम क्या है कि कंप्यूटर नहीं आता करना यूज़ है, क्या स्यापा है यार, ये हैशटैग कॉमा ये वो। ठीक, सीखो इसको। आप सब छोड़ो काम, पहले यूट्यूब पे जाके कंप्यूटर के फुल फंक्शनिंग सीखो। हम मोबाइल लेते हैं ना, इसके 40% भी नहीं हम सीखते इसको। जब ये आउटडेट हो जाता है 60% इसके फंक्शंस हमें आते नहीं होते। सेम वे कंप्यूटर्स को, इंटरनेट को यूज़ करना सीखो। उसमें से आपको बहुत मटेरियल मिलेगा। पेन ड्राइव लो, उसमें आप पुरानी हिस्ट्री की पुरानी पीपीटीज बनाओ, वो बच्चों को दिखाओ। भगत सिंह क्या थे, भगत सिंह ने क्या किया, राजगुरु सुखदेव कौन थे, उन्होंने क्या किया, चंद्रशेखर आजाद क्या थे, उन्होंने क्या। डेली एक शहीद के बारे में बताओ। कैप्टन सोमनाथ शर्मा का क्या रोल था मालूम है? कैप्टन सोमनाथ शर्मा ना होता तो आप यहाँ ना होते, उधर होते जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और सारे मैच हारे होते रोते होते। फॉलो। फिर बोलते ये तो हारे, इन्होंने जय श्री राम बोल दिया है। पंजाबी च एक कहावत है, हाथ ना आया थू कौड़ी। मैम बच्चों को मोटिवेट तो करो ना। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो अपने से पूरा एफर्ट करती हूँ सर, जो भी है। मैं भैन जी ऐसा नहीं कह रहे, तुम नहीं करते। हाँ। ऐसा नहीं, बट जब बात आती है, जब उनके नाम होते हैं, जैसे आप उसमें नाम तो चेंज नहीं कर सकते किसी का, या फिर डेट्स होती हैं सर, वहाँ पे बात आती है ना। आपको बताता हूँ। अब केमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है, मॉलिक्यूल गैस मॉडल है, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में है। मैं बच्चों को बोलता हूँ मॉलिक्यूल्स आर सफेरिकल, मॉलिक्यूल्स आर दे आर वेरी हार्ड टू कंप्रेस नहीं किए जाते, हार्ड। दे मूव इन रैंडम डायरेक्शंस, देयर कोलिजन इज इंस्टेंटेनियस, द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फ्री पाथ, their collision is elastic, their volume is negligible as compared to the total volume of the gas, their impact causes pressure. तो आप हिस्ट्री में भी कोई श्रीदेवा ढूंढो ना। मतलब पता क्या है, मम्मी है जानते हैं आपके, मम्मी के घर गए हो, जब आप मम्मी के घर जाते हो तो जब माँ खाना बनाती है, खाया उसका टेस्ट कैसा होता है? अच्छा होता है ना। जब वो माँ देसी घी लगा के ऐसे ऐसे करके रोटी देती है, उसका टेस्ट अलग होता है ना। अगर ना भी खाना बनाओ, माँ को क्या बोलते हैं कि तू ऐ कर माँ, रोटी बना, ऊपर देसी घी ला, नमक मिर्च ला और गोल मोल ऐसे करके चाह ना दे दे, 6 खा जाना मैं। वो 5 स्टार होटल का उससे भी बेस्ट टेस्ट है ना, है ना। वो क्या है, वो फीलिंग है मदर की। क्या वो फील, मैं ये नहीं कहता आप में नहीं है, वो फीलिंग तो लेके आओ। Am I right? Yes, sir. तो hope I have given the answer to you. Yes, sir. ये बड़े अच्छे टीचर्स हैं सारे सर, आपके सभी टीचर्स बहुत नाइस हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं। ये तेज है। कम हियर। इसके क्वेश्चंस रियली बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया थे। वो तो मैं इसको ना ले जाता उल्टा करके भी, मैं नलायक स्टूडेंट बन गया, इसको यही खुशी हुई, इसको नलायक आया, इसको डांटने का मौका मिला। जीते रहो। यस मैम, इज इट ओके? हिस्ट्री इज नो मोर अ प्रॉब्लम। और मुझे हिस्ट्री खुद नहीं अच्छी लगती, लेकिन मैं हिस्ट्री को कैसे पढ़ाऊंगा, मैं उसका तरीका, अगर मैं समोसे भी बेचूंगा ना, तो मैं हर समोसे को ना फॉइल रैप में करके, साथ में उसके चटनी लगा रख के, अलग से डक्का लगा के 20 का 50 में बेचूंगा। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन एंड मार्केटिंग। हम कैपुचिनो कॉफी कैफे डे में जाके पीते हैं, पहले तो वहाँ क्राउड अच्छी होती है, किसी के साथ बैठे को देखता नहीं है, आप जैसे मर्जी बैठ के पियो सर। फिर उस पर जो कप आता है उसमें वो दिल बना के लगताते हैं, ठीक है, कितनी मेहनत होती है। उसी के हम 100 रुपये दिल का, 50 रुपये एम्बियंस के, 50 रुपये 250, 50 रुपये वेटर को भी दे जाते हैं डिप, 300 में कप बनता है। घर जाके कहिए 300 रुपये की कॉफी पी के लगता है दिमाग खराब है, क्यों पी है। लॉजिक है, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ योर प्रेजेंटेशन इज पुअर, आज की जनरेशन नहीं सुनती, वो कौन सी है, डिजिटल जनरेशन है। आने वाले टाइम में तो जो बच्चे पैदा होंगे उनके यहाँ स्लॉट भी लग जाना है, यहीं पर चिप लग गया। सो यू हैव टू अपडेट योर सॉफ्टवेयर। किसका? टीचिंग का, कंप्यूटर में नहीं, अपना। यस मैम, आप आइए।
गुड आफ्टरनून सर। अब तो गुड इवनिंग भी होने वाली है। आई एम किरण कुमारी, आई टीच फ्रॉम क्लास सेकंड। क्या पढ़ाते हैं आप? क्लास सेकंड को एसएसटी साइंस। हम लोग सब कुछ ही होते हैं, मतलब सेकंड में तो ऑल राउंडर है, सब कुछ पढ़ा देते हैं। मिक्स वेज थाली। अब क्वेश्चन क्या है मेरे को? क्वेश्चन ये है कि बच्चों को जो है रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर रीड करने में उनको। जिनको प्रॉब्लम आती है ना, उनको एक वीक पढ़ाना नहीं है, उनको बोलो आओ आपस में बैठ के हम बातें करते हैं आधा घंटा। अगर वो बोल सकते हैं तो गा सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। अगर वो चल सकते हैं तो वो डांस भी कर सकते हैं, राइट? तो उनके साथ कि छोड़ो यार पढ़ाई वढ़ाई मेरे को तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, यस मैम मैं तो ऐसी फंस गई यहाँ पढ़ाने लग गई, राइट? उनके साथ उनके लेवल के बन जाओ। बड़ा आदमी पता कौन होता है? बड़ा आदमी वो होता है जो छोटे आदमी को छोटे होने का एहसास ना दे। तो आप टीचर नहीं है, आप उसी लेवल के बन जाओ। स्टूडेंट मेरे को भी नहीं पढ़ाई अच्छी लगती थी, मेरे भी मार्क्स कम आते थे, पर पढ़ना पड़ता यार, पता क्यों? नहीं पढ़ेंगे तो फिर ना बस भैंस, जो भी आपको चाहिए। कोई भी ऐसी एग्जाम्पल दो जो डे टू डे लाइफ में दिखे। अब जब भी आप पिज्जा देखोगे मेरे को याद करोगे, है ना? Yes, sir. जब भी आप हनुमान जी की बात करोगे तो आप मेरे को याद करोगे। तो आई एम द पार्ट ऑफ योर मेमोरी। दिस इज द वे। आपने अपने आप को बच्चों के अंदर रिटेंशन क्रिएट करनी है। वो रिटेंशन कैसे आएगी? वो मैं आपको बोलूं, आपको जोर लगा ले कोई रिसोर्स पर्सन, ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी माता सारे आके आपको सिखा दें, करेंगे आप वही जो आपने सोचा हुआ है, क्योंकि आप विश्व गुरु हो। तो आपने खुद, मैं नहीं, आई कैन नॉट चेंज यू, आई कैन नॉट सिंपली कोट सम एग्जाम्पल्स। तो आप खुद ढूंढो कि हाउ आई कैन फाइंड द सोल्यूशन टू मी। मैंने क्या ढूंढा कि मैं तो उन जैसे बन जाऊंगा। अब मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे वो नहीं पढ़ते थे, वो सर चल यार तो क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा क्रिकेट खेलने चले जाना जी। मैं कहा यार टेस्ट रखा है सर, अपने टेस्ट नहीं देना। मैं कहा ओके आई विल टेल योर पेरेंट्स कि आप दे गए हो। पक्का सर? यस। वी प्लेड मैच। 2-3 वीक के बाद मैंने बोला यार कुछ पढ़ भी लेते हैं। सर यू आर वेरी कोऑपरेटिव, तो वी विल कोऑपरेट विद यू। मैं अपने घर में रख के उन बच्चों को रात को 11-12 बजे तक पढ़ाता था। 7 टाइम्स इन इंडिया मैंने रैंक दिया फर्स्ट। आप देख सकते हो नेट पे, ये ऑन रिकॉर्ड है। आप नेट पे जाओ, थोड़ा सा सर को मैंने इम्प्रेस मारा, थोड़ा सा उधर जाके मैंने देखो सर, मेरे को तो कोई भी मिलता है ना, अब हम जाते जाते ये मेरे को वो खिलाएंगे, क्या वो पल्ले लखनपुर के, तो वहां भी मैं उसको भी बोल दूंगा कि देखो मैं ये हूँ, मेरा प्रोफाइल है, राइट? तो लॉजिक वो 2 रुपये कम कर देता है। लॉजिक क्या है? लॉजिक इज व्हाट के हमें कनेक्ट करना है। शादी हो चुकी है? यस सर। नई दुनिया में आए हो? यस सर। वहाँ कनेक्ट किया है? यस सर। है ना? यस सर। वो गाने तो नहीं गाते दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा, जहर पीना पड़ेगा। नो सर। मैम सच्चाई तो यही है। अरे वो 24 घंटे में 15 मिनट हर आदमी के खराब आते हैं, जो शादीशुदा नहीं है, और जो शादीशुदा है उसके 15 मिनट ही ठीक होते हैं। तो लॉजिक पकड़ो। हमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, घर से प्रॉब्लम्स हैं, प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, टॉन्ट्स हैं, तुम यहाँ से आए वहाँ से आए, पूरा कल्चर चेंज करके। पहले तो मैं फीमेल्स को सल्यूट करता हूँ कि सब कुछ छोड़ के नई जगह पे आते हैं। तो उसके बाद फिर आपको लगता है कि यार मैं कुछ आ तो गई यहाँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ बट आई एम नॉट एबल टू डू। तो फिर आप अपने वेटर हब को बोलते हो कि चलो ठीक है, मैं संसार सर को बोलता हूँ कि वो उनके स्कूल में चलते हैं, तो आप आके पढ़ाते हो, तो आपकी एक दुनिया बदलती है। फिर धीरे धीरे आपका ऑरा बदलता है, फिर आप अपने अंदर से एक टीचर को डिस्कवर करते हैं। क्या नाम है आपका? किरण। तो फिर किरण मैडम किरण हो जाते हैं, राइट? तो एनी मोर क्वेश्चन? यस प्लीज। कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं बोलते आप? सर मेरा नाम पूजा भगत है और मैं सेकंड क्लास को हिंदी इंग्लिश और बाकी वालों को कंप्यूटर पढ़ाती हूँ। सभी लोग
इनसे ट्यूशन रखने वाले हैं, कंप्यूटर सीखेंगे। क्या आप एक दूसरे को सिखाते हो कुछ? किनको? हैं? सर एक दिन आप प्रिंसिपल बनोगे, आज मैं लिख के जा रहा हूँ। जलना मत, अच्छा आप कोऑपरेट करना। मतलब सभी में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर वाला स्टफ है। आप लोग बड़े गजब के लोग हो, मतलब आई एम एंजॉयिंग रियली। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन टू मी? सर हाँ, एक क्वेश्चन है कि जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो स्कूल में जो पढ़ाया होता है घर में जाके दूसरे दिन फिर क्लास में पूछो अगले हफ्ते तो सारा भूल गए होते हैं। भूत, दे आर ऑल गजनी। देखो मैं आपको फिर बोलता हूँ, बच्चा 9 से 3 ही पढ़ता है। जैसे उसने स्कूल का यूनिफॉर्म उतारा, वो बोलते छुट्टी हो गई। सैटरडे को तो वो इतना मस्त होता है जैसे पता नहीं काला पानी की सजा से भुगत के फ्री हुआ है, राइट? मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जो क्वेश्चंस एग्जाम में डालने हैं ना, वो रटाने शुरू कर दो। पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 आते हैं। आप उनको 100 रटा दो यार। सर मैं वो बोल रही हूँ जो कंप्यूटर पे करवाती हूँ ना, हाँ। तो घर में जाके प्रैक्टिस नहीं होती। अब ये हमारा टूल किट बनेगा। कैसे? सर आप इनका वीडियो बनाएंगे कि सभी टीचर्स, हम सब पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों को एक कंप्यूटर लेके दो जिसमें इंटरनेट की सुविधा हो। सिर्फ कंप्यूटर कह रहा हूं मैं, स्मार्टफोन टैब नहीं कह रहा। उसमें वो फंसेंगे व्हाट्सएप में। अभी तो बच्चे छोटे हैं आपके, 11-12 के, तो व्हाट्सएप पे फंसते हैं। तू भी ऑनलाइन, मैं भी ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन, फोटो डीपी गायब। मतलब दे पीपल आर सो पॉजिटिव एंड सो इमोशनल कि बच्चे, मैं मानता हूं बच्चों को बोलना है कि तू, ये चीजें तुम्हें मिलेंगी और तूने इसको नहीं करना। हमें बच्चों को कंडीशन करना है। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, इस कमरे में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल एक जैसा है कि अलग अलग है? AQI जानते हैं आप? ऑक्सीजन लेवल एक जैसा है ना? है ना? तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या हम एक जैसी ऑक्सीजन ले रहे हैं सर? नो। क्यों? व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? It depends on the efficiency of our lungs. और लंग्स भी सेम है सर। लंग्स भी सेम है सर। आज इधर आई लिसन। He is the tomato of my sauce. He is the sugar of my tea. I am his fan. Then it will depend on the metabolism rate of our body. वो भी सेम। मैं आपको बताता हूं। Okay. जितना जिसका हेमोग्लोबिन, उतनी वो ऑक्सीजन लेगा। Yes. Metabolism की बात वही आएगा। जितना हेमोग्लोबिन होगा उतनी वो ऑक्सीजन लेगा। अब आ जाओ, एयर क्वालिटी इंडेक्स को रिप्लेस कर दो टीचिंग में। टीचिंग इज डिफरेंट देन लर्निंग। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? टीचिंग। हेमोग्लोबिन क्या है? लर्निंग। तो आपने बच्चों का हेमोग्लोबिन यानी कि लर्निंग एफिशिएंसी बढ़ानी है। टीचर तो आप गजब हो, पूरे जम्मू कश्मीर में आपसे बेस्ट टीचर तो कोई है ही नहीं। ये रोज बोला करो 108 मनके की माला लगे, आई एम द बेस्ट टीचर, आई एम द बेस्ट टीचर, आई एम द बेस्ट टीचर, आई एम द बेस्ट टीचर। आप सच में बेस्ट हो जाओगे, सच कह रहा हूं। करके देखो, 40 दिन का उपाय है ये। करके तो देखो, आप पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। फिर क्या है, वो बच्चा जो है उसको हर चीज बताओगे, बेटा इसमें ये प्रॉब्लम है, ये करेगा तो ये करेगा तो ये करेगा तो ये। दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कंडीशनिंग ऑफ ए चाइल्ड। हम में से बहुत सारे लोग पेरेंट्स भी हैं, तो अभी से हम अब एज ए पेरेंट भी हम एक टिप ले रहे हैं कि हमें बच्चों से कम्युनिकेट करना ही करना है। एक जमाना आता था पापा ड्राइंग रूम में है तो बेटा बेडरूम में है, पापा बेडरूम में है तो बच्चा ड्राइंग रूम। और आज की डेट में हाय ब्रो डैड हाउ आर यू, फाइन। ओ यार मैं जूते लेकर आऊँ, डैड थोड़ा दिमाग ठीक नहीं है। कितने के लाया हो? बेटा 12,000 के। पापा 6,000 का मिल रहा है, ये देखो डिस्काउंट है। तूने पहले क्यों नहीं बताया? पापा बोलेगा अरे ये तो मेरा भी बाप है। क्यों? वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज करोगे, बच्चों की कंडीशनिंग करोगे, क्या मैं नाम है आपका? पूजा मैम, वो आपकी पूजा ही करेंगे दिन रात।
बोलेंगे मैम आप सभी को आप थोड़ा थोड़ा टिप दो कि यार ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे अकाउंट बनता है, ऐसे आप स्ट्रिंग्स देख सकते हो, इसमें ऐसे आप हैशटैग कॉमा करके अपना वो बना सकते हो, ट्रोल कर सकते हो। तो सिखाओ सबको। और आप ही बच्चों को बोलो कि अगर इफ यू डोंट यूज द टेक्नोलॉजी आप खत्म हो जाओगे। गांव के लोग हैं ना, ऑनेस्ट होते हैं, बहुत जल्दी पिक करेंगे इस चीज को। ठीक है। वल्गैरिटी हमारे दिमाग में है मैम, एग्रीड और नॉट? तो हमें उसको निकालना है, उस ऐप को निकालना है, उनमें एक पॉजिटिविटी लानी है, ये चीज है। यस मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? हो गया, ठीक है। और कुछ? दैट्स इट। यस, बैठिए सर। थैंक यू सर। डियर टीचर्स, आप 5 + 3 + 3 + 4 इसके बारे में तो जानते ही हैं। जब ये 5 में स्टूडेंट आता है तो 6 मतलब इस क्लास तक तो कोई एग्ज़ाम नहीं है, प्रमोशन एग्ज़ाम्स है। फिर जब 6th में जाता है तो फिर भी कोई एग्ज़ाम 6 में लेते हैं हम लोग, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 क्या कहती है, बहुत ब्रीफ में बताऊंगा। आप वोकेशनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करो। यस, वो जमाना लद गया कि जब आप वो पढ़ा रहे हो, क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल जो पढ़ा रहे हो अभी, ठीक है, हाँ, आप स्कूल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से ये इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इमीडिएटली आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और मैं आपके स्कूल के सिस्टम को देख चुका हूं, तो कोडिंग इज 1 minute जॉब टू स्टार्ट। इट्स पॉसिबल टुमारो ऑल्सो। अब कोडिंग से क्या होगा, जो रूरल एरिया के पेरेंट्स हैं उनका ब्रेन डिकोड होगा। किससे? इंटरनेट से। उनको वो एग्जाम्पल दो झज्जर वाली कि बच्चे ने कोडिंग सीखी, इतने करोड़ कमा लिए। तो हिंदुस्तान में पैसा बहुत अट्रैक्ट करता है। अच्छा, हाँ, ऐप बना सकता आपका बच्चा, जब ये 5th में जाएगा, 4th में जाएगा, ऐप बना सकता है, अपनी प्रोग्रामिंग कर सकता है। मार्क जकरबर्गर की एग्जाम्पल दो उनको, जिसने फेसबुक बनाया, राइट? तो आप इस तरह की एग्जाम्पल्स दो, जिस एग्जाम्पल से लोगों ने रैग्स टू रिचेस स्टोरी, ये आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पेरेंट्स को आप कोडिंग के बारे में बताइए कि ये कोर्स है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये कंपलसरी है, करना है। जो स्कूल नहीं कर रहा वो बैक में चला जाएगा। अब वो जमाना चला गया कि हम लोग वो ट्रेडिशनल कर रहे हैं कि सुदा आ झूला झूल, सूरज उठा निकल गया है तो अभी तक सो रहा है। ये खत्म हो गया जमाना। ओके, अब जमाना क्या है? अब वो जमाना एंटरटेनमेंट चला गया। क्या? अधि कटे तो सबको मारे, अंत कटे तो सबको तारे, ना जाने कैसा है जैसा देखूं वैसा है। दैट इज कॉल्ड काजल। अधि कटे तो सबको मारे काल, अंत कटे तो सबको मारे काज। अब ये थ्योरी लेके पढ़ लिखा के आप आईडीएफ में नहीं जा सकते, इजराइल डिफेंस फोर्सेस। हमास वाला बोलेगा मैं तेरे को रॉकेट मारूंगा, अधि कटे तो सबको मारे, अंत कटे तो सबको तारे, इतने में छुट्टी आपकी। हमें मैं टेक्नोलॉजी को क्यों प्रमोट कर रहा हूं? बिकॉज टेक्नोलॉजी सबसे सस्ता, बढ़िया, बेहतरीन तरीका है टू मैच विद यूएसए। आप यहां बैठ के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के करिकुलम को मैच कर सकते हो। अब कोडिंग सिखा के बच्चे को, बच्चा अपनी वेबसाइट बना सकता है, अपनी ऐप बना सकता है, ओला, जोमेटो, ठीक है। ये क्या है? ओयो, राइट? ये क्या है? दिस इज द कोडिंग। कोडिंग इज नॉट ए बिग डील। मैं तो कहता हूं आप सब लोग सीखो, सभी टीचर्स। हिंदी
English, Punjabi, whatever the teachers you have, you should learn this is an essential. बहुत पहले जब हम बहुत छोटे होते थे तो बोलते थे देखो टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड आता है. कभी देखा है टाइपराइटर किसी के पास आजकल? नहीं देखा ना. शॉर्ट हैंड तो चलो है उनके पास, वो जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं उनके पास भी आजकल शॉर्ट हैंड नहीं है. उनके पास सीधे ये मेरे वाला काम रिकॉर्डिंग. तो आप कोडिंग सीखो. उनको कोडिंग से कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, इंटरनेट से कनेक्ट होगा. यही एक मंत्र है वोकेशनल का. ये सब्जेक्ट तो आप इंप्लीमेंट करो. यूपीएस परहैप्स विल हेल्प यू इन कोडिंग आल्सो. सर हमने कोविड में आइए सर, सर के लिए तालियां आ जाए. कोविड के अंदर हमने ऑल ओवर इंडिया में कई टीचर्स और स्टूडेंट्स फ्री कोडिंग करवाई है 2 साल. वो हमारी बुक्स है उसमें कोडिंग है, वो भी हम करवाते हैं. जो भी नया कोर्स आएगा वो भी हम आप लोगों के सामने शेयर करेंगे. तो आप पर डिपेंड है कोडिंग कैसे करनी है. बुक्स हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे. ट्रेनिंग भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं कोडिंग की. तो अगर आप लोगों को कोडिंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तो वो ट्रेनिंग भी ऑनलाइन सेशन हो जाएगा एक आप लोगों का. तो क्योंकि आप लोगों से मतलब बैड लक समझिए कि बहुत लेट मिले हैं. अगर हम लोग बिफोर कोविड मिलते तो आपको कोडिंग अब तक आ गई होती कैसे करनी है. सर मुझे ऑस्कर मिलना चाहिए. मैंने मुकेश सर को पहली बार माइक पे बुलाया आज. एक चीज बताऊं आपको, सच बताऊं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग ना ईगो के कारण नहीं सीख पाते. मेरे साथ बोलो, ईगो किल्स बेस्ट टैलेंट्स. जिसमें बहुत अच्छी टैलेंट होता है वो ईगो होती है. ईगो ऐसे कई लोग बड़े ईगो में रहते हैं. ईगो को मारो गोली, ईगो लेस हो जाओ. कोई बात नहीं, कोई बंदा नहीं ढंग का है उसको अवॉइड मार दो, नहीं पसंद, ये चीज़ है. तो मुकेश सर एक और सर मैं आपसे शेयर करूंगा. आप दिल्ली जाते हैं तो हमारा ऑफिस का एड्रेस मैं आप कार्ड दे दूंगा, वहाँ जाइएगा. वहाँ आपको फिजिकल कोडिंग कैसे होती है वो शीट है और वो ब्लॉक है, ब्लॉक्स होते हैं कैसे अलाइन होते हैं. तो वो फिजिकली एक बार आप वहाँ देख कर आइए. आइए सर आप भी हमारे. हाँ वो होता है उसमें प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए भी है, ऊपर भी है. वो ऐसे वो प्री प्राइमरी के है. हाँ जी. तो वो वहाँ जाए एक बार. मैं चाहूँगा कि आप ऑफिस हमारे जाइए, मैं अरेंज कर दूँगा वहाँ जो भी वहाँ उस वक्त ऑन होंगे बंदे. वैसे तो फील्ड में रहते हैं मैक्सिमम, लेकिन जो पर्टिकुलर डेज होगा उस दिन उनको बोलेंगे कि वहाँ तो वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी अगर ऑफिस में हमारे जाएंगे दिल्ली में. हम भी चाहते हैं कि कुछ नया इनिशिएटिव बहुत नया इस जगह के इस एरिया के हिसाब से, ताकि वो तो सर चीज ऐसी हो एडमिशन मैग्नेट है. सर आप भी आइए. बिल्कुल. ये तो नए अभी ट्रेनिंग लेकर आए. देखो अभी आइए सर. देखो अभी तक we were all dominated by females. फर्स्ट टाइम हमारे मेजॉरिटी आ गई. अब सर एक्चुअली अब जैसे सर ने कहा टेक्नोलॉजी पे फोकस होना चाहिए. तो आजकल स्कूल्स टेक्नोलॉजी पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटी. तो अब मार्केट में इतनी चीज़ें आ चुकी हैं जो वो हो चुकी हैं कि मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना. टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो चुकी है एजुकेशन. तो वो कुछ चीज़ें से जो एडमिशन मैग्नेट्स हैं वो आप ज़रूर सर सही कह रहे हैं. एक बार ज़रूर जाना ऑफिस, आप खुद देखोगे, आप खुद बोलोगे अरे वाह यार ये क्या चीज़ है. मतलब कोडिंग, फुटबॉल आप इंडोर खेल सकते हैं, कंपटीशन करवा सकते हैं, साइंस का क्विज करवा सकते हैं 4 टीम्स का. ऐसे फुट से आप सिलेक्शन ऑप्शन कोडिंग का ही वो पूरा बनाया. छोटे बच्चों का कोडिंग वाला रोबोट आता है क्यूबेटो करके, वो ज़रूर देखना. मतलब नर्सरी के बच्चों को कोडिंग सिखाता है वो रोबोट. वो चीज़ें आप ऑफिस जाओगे तब आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी. तभी सर ने एक अच्छा पॉइंट बताया है, ये आप ज़रूर देखना. मतलब ये है कि नई चीज़ें हैं और ये ऐसी है कि जहाँ लग जाए पेरेंट आता, बच्चा कहीं नहीं जाता. ये है टेक्निकली हमने देखा है, एग्जाम्पल्स हैं काफ़ी. वो भी है ना वीडियोज़ हैं सर के साथ.
जैसे सर ये प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए किड लोग कोडिंग करके भी एक ऐप है उसमें भी वो कुछ और चीज़ है, वो एक्सपीरियंशियल बेस्ड है, वो मतलब एक रोबोट है, वो एक रोबोट है, मैप है, बच्चों को रोबोट से हम कोडिंग सिखाते हैं। वो तो एप्लीकेशन छोटा बच्चा क्या ही समझेगा, छोटा एप्लीकेशन ये इसका बेसिक लेवल जो है बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल डेवलप हो जाता है। वो सर देखिए इधर दिखाओ सर इसमें। A big round of applause for UPS. Big round of applause for Vipin sir also, जिन्होंने मुकेश सर को बुला लिया। गुप्ता सर, अमेजिंग। यस सर, यस सर। सर अभी तो आपने शुरू किया बोलना। नहीं सर, बस कितना ही। ना इसको स्टेप एंड लर्न्स बोलते हैं, स्टेप एंड लर्न। ये प्रोजेक्टर ऊपर मशीन सेट की होती है, नीचे वाइट वो जो चादर होती है, चादर टाइप ही होता है, वो बिछा देते हैं तो वहाँ से वो चलता है। फिर ये सेंसर है सारा, ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ तो लग रहा है ना कि वो पंच कर रहा है, ज़ोर से कर रहा है, वो ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वहाँ आपने जो जैसे कलर्स का है, बैलून है रेड कलर का है, तो बच्चे को टारगेट दे दिया, आपके पास रेड कलर है, इसके पास ग्रीन कलर है, उसके पास येलो कलर है, तो वो जैसे ही आएगा बैलून उसके ऊपर सिर्फ पैर रखना है तो वो प्लस गेम्स हैं, 1000 खेल सकते हैं। बी स्टिंग एक बड़ी हमने खेल ली थी गेम, मैं जब दिल्ली, मतलब बी आ रही है आपको जंप करना, बी को स्टिंग नहीं कर रहे आपको, मतलब कि बच्चा फिजिकल मोटर स्किल, इसको मेजर कहते हैं कैनेस्थेटिक एक्टिविटी, कैनेस्थेटिक लर्निंग। कैनेस्थेटिक लर्निंग के लिए चीज़ है कि बच्चों की मोटर डेवलपमेंट भी हो, जो कि आजकल बड़ा एम्फेसिस कर रहे हैं स्कूल, तो ये वो है बेसिकली। हाँ ग्रेट, ठीक। थैंक यू मुकेश सर, थैंक यू गुप्ता सर। योर फुल नेम इज अदीश गुप्ता, अदीश Adish Gupta. Thank you sir, thank you very much. Any final message if you have? क्या लर्नर बंदे हैं, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा है। तो मेरे हिसाब से हम एक काम करते हैं, हम छोटे छोटे स्टेप्स में चलते हैं, हम सिर्फ कोडिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। क्यों सर? वो लंबी लंबी छोड़ने का आप ये करो, कारपेंट्री करो, वेल्डिंग करो, नहीं, सिर्फ कोडिंग। जो टीचर्स बहुत बढ़िया कुकिंग जानते हैं वो बच्चों को, जैसे अभी हमने वो खाए थे स्प्रिंग रोल्स, सॉरी इफ आई हैवंट शेयर्ड, ओके, और फिर हमने सैंडविच भी खाया, लेकिन समोसा नंबर फुल ले गया 10 out of 10। द रीज़न बीइंग इज़ दैट कि जिस बंदे ने बनाया होगा, हो सकता है उसकी स्पेशलिटी, हर टीचर में कुछ ना कुछ क्वालिटी है, तो वोकेशनल सब्जेक्ट रखा जा सकता है। संगीत का कौन शौकीन है यहाँ? आओ जी आओ, जरा 2 मिनट भाई। राधु मैम के लिए तालियां दो। राधु मैम ये माइक पकड़िए जरा, थोड़ी देर के लिए मुझे हंसरा समझे। ये इसमें बैटरी होती है, तो ये Radhu ma'am is going to share some song with us right now. सर मैं प्रेयर ही बोल देती हूँ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। धन्यवाद। अब प्रार्थना तो हो गई, अब हमारी एक प्रार्थना है कि इसके अलावा भी 2 लाइन कुछ और सुनाइए। आप भी गाते हैं लगता है। Any teacher like to contribute and help Radhu? Yes. Let it
स्टेशन से FM 102.2 है, उस पर शाम को एक प्रोग्राम आता है टेलीफोन का, तो उसमें मैंने भी करता हूँ वो डोगरी में ना, कल्ला छुपाइया डोगरिया बहुत ज़्यादा लंबाई पसार। सर हम आपको भी डोगरी सॉन्ग सुनाते हैं, सिर्फ दो लाइन्स का। ऊंचा ते लंबाई पसार बैठी चोल छटनियो मेरी जान, बैठी चोल छटनियो मेरी जान, छोटाए देवर शैतान मत चुंड खोलियो वे मेरी जान, मत चुंड खोलियो वे मेरी जान। धन्यवाद। वो नंबर ले गए आप भी तो। सर मुझे गाना नहीं आता ये वाला। फिर आपके माइक पकड़ने हैं। मोटिवेट करने में हमको। अब हमने भी मोटिवेट किया है तो नहीं, मैं हंसराज को बुलाता हूँ। यस, कुछ भी है, चलो। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ ए टीचर कि टीचर जो है वो टोटलिटी इन ए पर्सनैलिटी है। क्या बोला? तो कहाँ कहाँ टोटलिटी मिसिंग है वो फाइंड आउट करो। अगले वर्कशॉप में सभी ने गाना गाना है, तो अभी से प्रैक्टिस। कोडिंग सीखनी है, कंप्यूटर्स की परफेक्शंस पे लाना है, और बच्चों से कनेक्शंस करना है। और संडे को बाय दिस वे दैट वे क्लास ज़रूर रखो। माँ बाप बोले क्या है यार आप लोग ने दुखी कर दिया, क्लास लगेगी, ठीक है, नहीं तो वो पीछे रह जाओगे, राइट। और बच्चों को कैसे इंटरेक्ट करना है, क्या बेटा जो इस संडे मैंने बताना है ना, उसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आना है। हाँ जी, यस यस। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय चेयरमैन सर को कि वो आए और जो दिल में हो सर बोल देना। कोई एक परिवार की तरह, एक भाई की तरह मैं आया हूँ, और ये जो यूपीएस है एक माध्यम है, इनका थैंक यू बोलते हैं हम लोग। बट चेयरमैन सर ये मैंने यहाँ लगा दिया है, तो आपका सर बस लग गया सर, लग गया। हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा, आपने हमारे स्टाफ को कुछ गाइडलाइन दी है, और मुझे भी, हमारे स्टाफ को भी अच्छा लगा होगा कि आपने क्या गाइडलाइन दी। और अब मैं भी उम्मीद करूँगा कि अगली बार जब आप आओगे तो शायद ये आपको आगे से रिस्पॉन्स कुछ बढ़िया देंगे हैं। और कोशिश हमारी ये होगी, मेरी भी होगी और मेरे पूरे ग्रुप की, पे हम लोग आपने जो बोला उसके ऊपर हम शायद कुछ खरे उतरे, कोशिश हम करेंगे। तो आगे जो भी होगा देखिए। सर मैं आपका क्यों फ़ैन हूँ मैं आपको बताऊँ। मैं गांव की मिट्टी का हूँ। यहाँ आके एक ईमानदारी, एक सच्ची देशभक्ति, जम्मू कश्मीर में जहाँ इतना समय कैसा गया है आप लोगों को ज़्यादा पता है। हमारी भारत सरकार का हम थैंक यू बोलते हैं कि आज हम यहाँ
आज़ादी से खुल के बात कर रहे हैं, ठीक। और आने वाले समय में हो सकता है उधर के लोग भी वर्कशॉप मुझसे करवाएं। ठीक है, वो भी हमारे भाई हैं और हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं। तो उधर के लोग भी करवाएं वर्कशॉप, सुन लेना भाई उधर वाले भी, ठीक। तो हम सब लोग आएंगे वहाँ और वी लव यू ऑल, यू आर वंडरफुल पीपल। सर आपका जो ना ये विजन है, ये सर बहुत भावुक करता है मेरे को, क्योंकि गांव के लोगों के लिए कोई सोचता ही नहीं है। देखो, गांव के लोगों के लिए मैं नहीं सोच रहा हूँ, ये जितना भी हमारा ग्रुप है, ये सारा ग्रुप एक मिलके काम कर रहा है और हमने आगे भी ऐसे ही काम करना है मिलके, और हमने कुछ इसको कहीं लेके जाना है। कोशिश हमारी ये रहेगी। और एक टीचर बनना एक छोटी बात नहीं होती, इंजीनियर सब बनते हैं, फौज में हर आदमी जाता है, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों में काम करते हैं, पर एक टीचर वही उसको वहां लेके जाता है। अगर टीचर नहीं तो कुछ नहीं। सबसे पहले स्कूल के बाद टीचर। अगर टीचर है तो हर चीज संभव, ना संभव कुछ नहीं। बस मैं इतनी बात करूंगा। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग सब मिलके मेरा साथ देंगे और हम कुछ आगे करेंगे। आई एम ऑल्सो विद यू सर। मैं पटियाला से आया करूँगा। जो पहला आदमी अंतरिक्ष में गया, राकेश शर्मा, वो पटियाला से था। जो पहला बैंक बना था, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला था। जो पहला आदमी जिसको देश के लिए फांसी हुई थी, सरदार सेवा सिंह ठेकरी वाला, वो पटियाला से था। और पटियाला सूट सलवार मशहूर तो है ही। और ये पहला रिसोर्स पर्सन है, वो भी पटियाला से, जो सारी रिकॉर्डिंग करता है। और हमारी ऑर्गेनिक रिकॉर्डिंग होती है, इसमें कोई एडिटिंग, कोई म्यूजिक नहीं मिलेगा। ये रात को 12 बजे के बाद सुबह जब आप उठोगे संडे को, तो ये रिकॉर्डिंग विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप इसको देख सकते हो। दूसरा, एक प्रॉमिस करो मेरे साथ, अगले सेशन की तैयारी अभी से शुरू कर दो। क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई टीचर में से कुछ बोलना चाहेगा, लास्ट वर्ड्स? हाँ, कुछ भी कोई भी आके बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यस, शी इज विलिंग। यस चंपा, कम। कोई भी कम फर्स्ट। चलो, मॉरल सपोर्ट मैं दूंगा, कम जल्दी से। आइए सर, आइए सर, आइए। यहाँ पहले बोलते लेडीज फर्स्ट, यहाँ तरसेम सर फर्स्ट। मल्टीपर्पज। ओके। सबसे पहले मैं सर का अपने पूरे स्कूल की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि ये यहाँ पे आए और एज ए टीचर हमें जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, जो हमारे अंदर, क्योंकि 100% कोई भी नहीं होता, कुछ ना कुछ कमियाँ, कुछ ना कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं। आज हमें उन त्रुटियों से, उन कमियों से इन्होंने रूबरू कराया। मैं इनका बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ, वेरी मच थैंकफुल टू हिम। और ये वर्कशॉप अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए एज ए टीचर, बिकॉज ओरिएंटेशन इज़ मच बेटर देन गोइंग थ्रू एनीथिंग एल्स। जब हमें ओरिएंट हो जाते हैं तो वी स्टार्ट प्लानिंग। जब हम स्टार्ट प्लानिंग करते हैं, वी गेट टू स्टार्ट एंड वी वर्क ऑन दैट पर्पस एंड वी अचीव आवर एम। जब एमलेस हैं, वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। इन्होंने हमें एम दिए हैं, लक्ष्य साधे हैं, अब निशाना हमने लगाना है, वो हम लगाएंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं अब स्पीचलेस। नो सर, इट्स माय प्लेजर। निशब्द। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। दोबारा तो नहीं बुलाएंगे आप लोग? ऑब्वियसली सर, रैंडमली वी विल कॉल। एक फिल्म होती है 2 घंटे 20 मिनट की, जिसमें जो सुपरस्टार है वो 30-40 मिनट आता है, जिसके वो 100 करोड़ रुपए ले लेता है। 1.5 घंटा ये, 2 घंटा, 3.5 घंटे का सेशन है सर अपना।
Thank you. God bless you all. Thank you so much, sir. I once again thank you to Vijay Paul sir, my favorite sir, very helpful. Mr. Mukesh, Mr. Adish Gupta, UPS, संसार सर, ये सब संसार सर का ही संसार है। तो सर, संसार सर ने जो हमें मोटिवेशंस दिया कि गांव में भी स्कूल खोला जा सकता है जहां कमर्शियल एंगल नहीं है, और हम सर के साथ खड़े हैं। सर जब भी बुलाओगे, आई एम हियर विद यू सर। कहते सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। दुर्योधन मेवे ठकुरायो, साग विदुर गर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मैं अक्सर ये बोला करता हूँ कि ये मेरे बहुत अच्छा लगता है कि क्या बोलते हैं, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। शायद मैंने बताया था आपको, नहीं। सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, नदिया सींचे खेत को तोता कुतरे आम, मंदिर में है मूर्ति मीरा के संग शाम, जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम। चाहे गीता वाचिए चाहे पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।